आज हम बात करेंगे अनफेयर लेबर प्रैक्टिस अर्थात अनुचित श्रम व्यवहार के बारे में और जानेंगे कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिस किसे कहते हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस की श्रेणी में आते हैं और अगर कोई अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करता है तो उसका पनिशमेंट क्या होगा। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस की परिभाषा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 2RA में दिया हुआ है, तो पहले हम उसे देखते हैं। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस मीन्स एनी ऑफ द प्रैक्टिस स्पेसिफाइड इन द 5th शेड्यूल। अर्थात अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का मतलब है कोई ऐसा व्यवहार जो 5th शेड्यूल में दिया हुआ है, अर्थात 5th शेड्यूल में जो दिया गया है वही अनुचित श्रम व्यवहार है। तो आइए अब हम 5th शेड्यूल को देखते हैं। ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियन ऑफ एम्प्लॉयर्स टू इंटरफेयर विद, रिस्ट्रेन फ्रॉम और कोयर्स वर्कमैन इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर राइट टू ऑर्गेनाइज, फॉर्म, ज्वाइन और असिस्ट ए ट्रेड यूनियन or to engage in concerted activities for the purpose of collective bargaining or other mutual aid or protection, that is to say, threatening workmen with discharge or dismissal if they join a trade union, threatening a lockout or closure if a trade union is organized, guaranteeing wages increase to workmen at crucial period of trade union organization with a view to undermining the effort of the trade union organization to dominate, interfere with or contribute support, financial or otherwise, to any trade union, that is to say, an employer taking an active interest in organizing a trade union of his workmen and an employer showing partiality or granting favor to one of several trade unions attempting to organize his workmen or to its members where such a trade union is not a recognized trade union, to establish employer sponsored trade unions of workmen, to encourage or discourage membership in any trade union by discriminating against any workman, that is to say, discharging or punishing a workman because he urged other workmen to join or organize a trade union, discharging or dismissing a workman for taking part in any strike, not being a strike which is deemed to be an illegal strike under this act, changing seniority relating of a workman because of trade union activities, refusing to promote workmen to higher post on account of their trade union activities, giving unmerited promotions to certain workmen with a view to creating discord amongst other workmen or to undermine the strength of their trade union, discharging office bearers or active members of the trade unions on account of their trade union activities, to discharge or dismiss workmen by way of victimization, not in good faith, but in the culpable exercise of the employer's right, by falsely implicated a workman in a criminal case on false evidence or on concocted evidence, for penalty false reasons, on untrue or trumped up allegation of absence without leave, in utter disregard of the principle of natural justice in the conduct of domestic inquiry or with undue haste, for misconduct of a minor or technical character without having any regard to the nature of the particular misconduct or the past record of service of the workman, thereby leading to a disproportionate punishment, to abolish the workmen of a regular nature being done by workmen and to give such work to contractors as a measure of breaking a strike, to transfer a workman mala fide from one place to another under the guise of following management policy, to insist upon individual workmen who are on a legal strike to sign a good conduct bond as a precondition to allowing them to resume work, to show favoritism or partiality to one set of workers regardless of merit, to employ workmen as badly, casual or temporaries and to continue them as such for years with the object of depriving them of the status and privilege of permanent workmen, to discharge or discriminate against any workman for filing charges or testifying against any employer
in any inquiry or proceeding relating to any industrial dispute, to recruit workmen during a strike which is not an illegal strike, failure to implement award, settlement or agreement, to indulge in acts of force or violence, to refuse to bargain collectively in good faith with the recognized trade unions, proposing or continuing a lockout deemed to be illegal under this act, on the part of workmen and trade union of workmen, to advise or actively support or instigate any strike deemed to be illegal under this act, to coerce workmen in exercise of their rights to self-organization or to join a trade union or refrain from joining any trade union, that is to say, for a trade union or its member to picketing in such a manner that non-striking workmen are physically debarred from entering the workplace, to indulge in acts of force or violence or to hold out threats or intimidation in connection with a strike against non-striking workmen or against managerial staff, for a recognized union to refuse to bargain collectively in good faith with the employer, to indulge in coercive activities against certification of a bargaining representative, to stage, encourage or instigate such forms or coercive action as willful, go slow, squatting on the work premises after working hours, or gherao any of members of the managerial or other staff, to stage demonstration at the residence of the employers or the managerial staff's members, to incite or indulge in willful damage to employer's property connected with the industry, to indulge in acts of force or violence or to hold out threat of intimidation against any workman with a view to prevent him from attending work। अब फिफ्थ शेड्यूल को देखने से यह स्पष्ट होता है कि इस शेड्यूल को दो पार्ट में बांटा गया। पहला एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के ट्रेड यूनियन की तरफ से किस प्रकार का व्यवहार है जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में आता है, और दूसरा वर्कमैन और वर्कमैन के ट्रेड यूनियन की तरफ से किस प्रकार का व्यवहार है जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में आएगा। एम्प्लॉयर की तरफ से किया जाने वाला व्यवहार जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में आता है उसे हम इस तरह से समझते हैं। कोई व्यवसाय संघ संगठित करने, बनाने, उसमें सम्मिलित होने या उसकी सहायता करने या सामूहिक रूप से सौदा करने या अन्य पारस्परिक सहायता या सुरक्षा के लिए मिलकर क्रियाकलाप करने के कर्मकारों के अधिकार का उनके द्वारा प्रयोग किए जाने में हस्तक्षेप करना, उन्हें अवरुद्ध करना या उन पर दबाव डालना। अर्थात यदि कर्मकार किसी व्यवसाय संघ में सम्मिलित होंगे तो उन्हें सेवा मुक्त या पदच्युत करने की धमकी देना। यदि व्यवसाय संघ संगठित किया जाएगा तो तालाबंदी या कामबंदी की धमकी देना। व्यवसाय संघ के संगठनात्मक प्रयासों को निष्फल करने की दृष्टि से व्यवसाय संगठन के संकटमय समयों पर मजदूरी वृद्धि मंजूर करना। किसी व्यवसाय संघ पर प्रभुत्व जमाना, ऐसे किसी व्यवसाय संघ में हस्तक्षेप करना या उसे वित्तीय या अन्यथा सहायता देना, अर्थात नियोजक द्वारा अपने कर्मकारों का व्यवसाय संघ संगठित करने में सक्रिय दिलचस्पी लेना, और जहां कोई व्यवसाय संघ मान्यता प्राप्त व्यवसाय संघ नहीं है वहां अपने कर्मकारों को या उनके सदस्यों के संगठित करने का प्रयास करने वाले अनेक व्यवसाय संघ में से किसी एक के प्रति नियोजक द्वारा पक्षपात दर्शित करना या उनका पक्ष लेना। कर्मकारों के ऐसे व्यवसाय संघों को स्थापित करना जो नियोजक द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। कर्मकारों के किसी व्यवसाय संघ की सदस्यता को किसी कर्मकार के प्रति भेदभाव करके प्रोत्साहित या हतोत्साहित करना, अर्थात किसी कर्मकार को इस कारण सेवा मुक्त या दंडित करने की उसने अन्य कर्मकारों के किसी व्यवसाय संघ में सम्मिलित होने या उसे संगठित करने के लिए प्रेरित किया था। किसी कर्मकार को किसी हड़ताल, ऐसे हड़ताल ना हो जो इस अधिनियम के अधीन अवैध हड़ताल समझी जाती है, में शामिल होने के कारण सेवा मुक्त या पदच्युत करना। किसी कर्मकार की चेष्टा को उसके व्यवसाय संघ से संबंधित क्रियाकलापों के कारण प्रवर्तित करना। किसी कर्मकार की उसके व्यवसाय संघ संबंधित क्रियाकलापों के कारण उच्च पद पर पदोन्नति करने से इनकार करना। कुछ कर्मकारों को
योग्यता के बिना इस दृष्टि से प्रोन्नति देना कि अन्य कर्मकारों के बीच वैमनस्य पैदा हो या उसे व्यवसाय संघ की ताकत घटे। व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों या सक्रिय सदस्यों को उनके व्यवसाय संघ संबंधी क्रियाकलापों के कारण सेवा मुक्त करना। कर्मकारों को दंडित किए जाने की दृष्टि से सद्भाव के बिना किंतु नियोजक के अधिकारों का आभासी प्रयोग करके किसी कर्मकार को किसी आपराधिक मामले में मिथ्या साक्ष्य या गढ़े हुए साक्ष्य पर मिथ्या साक्ष्य अलिप्त करके स्पष्टतः मिथ्या कारणों से इजाज़त के बिना अनुपस्थित लिए असत्य या गढ़े हुए अभिकथनों पर आंतरिक जांच के संचालन में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को पूर्णतः अवहेलना करके या असमयक जल्दबाजी करके मामूली या तकनीकी प्रकृति के औजार के कारण और उस विशेष औजार की प्रकृति पर ध्यान दिए बिना या कर्मकार के पिछले अभिलेख या सेवा पर ध्यान दिए बिना जिससे कि औजार के मुकाबले दंड अधिक हो जाए सेवा मुक्त या पदच्युत करना। कर्मकार द्वारा किए जा रहे नियमित प्रकृति के कार्य को समाप्त करने के लिए और ऐसे कार्य को ठेकेदार को देने के लिए जो हड़ताल तोड़ने के लिए हो। किसी कर्मकार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सद्भाव के बिना प्रबंध की नीति अनुसरण करने के बहाने से स्थानांतरण करना। ऐसे कर्मकार पर जो वैध हड़ताल कर रहे हैं पुनः काम करने की अनुज्ञा देने के पूर्व शर्त के रूप में अच्छे आचरण के बंध पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए जोर डालना। योग्यता का ध्यान रखे बिना कर्मकार को किसी एक समूह के लिए पक्ष लेना या उनके लिए पक्षपात करना। अस्थायी कर्मकारों की हैसियत और विशेषाधिकार से वंचित करने के उद्देश्य से कर्मकारों को बदली, आकस्मिक या अस्थायी रूप से नियोजित करना और उन्हें उस रूप में वर्षों तक चलते रहने देना। किसी औद्योगिक विवाद में संबंधित किसी जांच कार्रवाई में नियोजक के विरुद्ध आरोप फाइल करने या साक्ष्य देने के लिए किसी कर्मकार को सेवा मुक्त या उसके विरुद्ध भेदभाव करना। ऐसी हड़ताल के दौरान जो अवैध हड़ताल नहीं है कर्मकारों को भर्ती करना। अधिनिर्णय, समझौता या करार को कार्यान्वित करने में असफलता, बल प्रयोग या हिंसा के कार्यों में शामिल होना। मान्यता प्राप्त व्यवसाय संघों के साथ सद्भावपूर्वक सामूहिक रूप से सौदा करने से इनकार करना। ऐसी तालाबंदी के लिए प्रस्ताव करना या उसे चालू रहने देना जो इस अधिनियम के अधीन अवैध समझी जाए। अब हम इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं जो कर्मकारों की तरफ से किया गया कार्य अनुचित श्रम व्यवहार की श्रेणी में आता है और उसे समझते हैं। इस अधिनियम के अधीन अवैध समझी जाने वाली हड़ताल के लिए सलाह देना या सक्रिय रूप से इसके लिए समर्थन करना या दुष्प्रेरित करना। कर्मकारों के स्वयं संगठन के अधिकार के प्रयोग पर दबाव डालना या व्यवसाय संघ में सम्मिलित होना या किसी व्यवसाय संघ में सम्मिलित होने से प्रवृत्त रहना, अर्थात किसी व्यवसाय संघ या उसके सदस्यों द्वारा ऐसी रीति से धरना देना जिसके फलस्वरूप हड़ताल न करने वाले कर्मकार अपने कार्य स्थानों में प्रवेश करने से शारीरिक रूप से वंचित रहे। हड़ताल न करने वाले कर्मकारों या प्रबंधकीय कर्मचारी वृंद के विरुद्ध बल प्रयोग या हिंसक कार्यों में शामिल होना या हड़ताल के संबंध में अभितराज की धमकियां देना। मान्यता प्राप्त संघ द्वारा नियोजकों के साथ सद्भावपूर्वक सामूहिक रूप से सौदा करने से इनकार करना। सौदा प्रतिनिधि के प्रमाण के विरुद्ध दबाव डालने वाले क्रियाकलापों में शामिल होना। दबाव डालने वाले ऐसे कार्य जैसा कि जानबूझकर धीमी गति से काम के घंटों के पश्चात काम के परिसर पर लेट जाना या प्रबंधकीय सदस्यों में से किसी एक का या अन्य कर्मचारी वृंद का घेराव करना, प्रदर्शित, प्रोत्साहित या दुष्प्रेरित करना। नियोजकों या प्रबंधकीय कर्मचारी वृंद के सदस्यों के निवास स्थान पर प्रदर्शन करना। उद्योग से संबंधित नियोजक की संपत्ति को नष्ट करने के लिए उद्दीप्त करना या जानबूझकर शामिल होना। किसी कर्मकार के विरुद्ध उसे काम पर जाने से प्रवृत्त करने की दृष्टि से बल या हिंसा के कार्यों में शामिल होना या अभितराज की धमकियां देना। तो इस प्रकार से दोनों तरफ से ये सभी कार्य अनफेयर लेबर प्रैक्टिस अर्थात अनुचित श्रम व्यवहार की श्रेणी में आते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का सेक्शन 25T अनफेयर लेबर प्रैक्टिस को प्रोहिबिट अर्थात प्रतिषेध करता है, जिसमें दिया गया है कि नो एम्प्लॉयर और वर्कमैन और ए ट्रेड यूनियन वेदर रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और नॉट शैल कमिट एनी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। अर्थात कोई नियोजक या कर्मकार या व्यवसाय संघ चाहे व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है अथवा नहीं, कोई अनुचित श्रम व्यवहार नहीं करेगा। अब अगर कोई अनुचित श्रम व्यवहार करता है तो उसके लिए क्या दंड है
तो इसका प्रावधान इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 25U में दिया हुआ है। तो आइए हम इसे देखते हैं। एनी पर्सन हु कमिट्स एनी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़ और विथ बोथ। अर्थात कोई व्यक्ति जो अनुचित श्रम व्यवहार करेगा वह कारावास से जो 6 मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिस अर्थात अनुचित श्रम व्यवहार क्या है और अगर कोई इसे करता है तो उसे क्या दंड मिलेगा।